داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ کچھ دیر تک مجدد الدین کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ، لگتا ہے تم نے کہ میرے کمرے کی صفائی اور تبدیلی میں بہت محنت کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ مرسینہ نے تیز نگاہوں سے مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑی چاہت اور محبت میں مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اب تو آپ ہی میرے احساس کا فسوں، میرے خیالوں کا حسین راز، میرے لبوں کے تبسم کی جوت، میرے دل کے رحمتوں کے عطیوں کا خمار ہیں، اب آپ ہی میری زیست کا صداقت و امانت برا پکوان ہیں۔ حالات، وقت اور عزیز و اقارب نے اب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا ہے، پھر اس رشتے کے تحت آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ہر کام کرنا میرا فرض عین بنتا ہے، اگر آپ مجھے نہ ملے ہوتے تو میں سمجھتی ہوں میری روح میرے جسم میں اب تک پگھل چکی ہوتی، میرے جمال کی حرارت، میرے لبوں کے نغمے ہلاکت خیز کہانیوں اور جان آواز ابتداؤں میں بدل گئے ہوتے۔ امیر، زمانے کے قافلے میں اب آپ ہی تو میری زندگی کی آخری رمق ہیں، میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی؟ آپ کا کام کرنا اب میرے فرائض میں شامل ہے۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے مجدد الدین بول پڑا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک چپ چاپ سی خاموش طبع لڑکی ہو، لیکن تم تو بڑے اچھے جملے، بڑے خوبصورت الفاظ بول سکتی ہو۔ بہرحال جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں مرسینہ، اس کے لیے میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب جب کہ تم نے میرے کمرے کی تبدیلی کر دی ہے، مجھے کپڑے نکال کر دو، میں تبدیل کروں، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ اس پر بڑی تیزی سے مرسینہ آگے بڑھی، ایک صندوق کھولا، اس میں طے کیے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر اس نے مجدد الدین کو تھما دیا تھا۔ مجدد الدین الٹ پلٹ کر ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر حیرت سے مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ، یہ کپڑے میرے تو نہیں؟ مرسینہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا، کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، میں غلطی نہیں کر سکتی، یہ کپڑے آپ ہی کے ہیں، آپ اس پر بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے پہلے آپ نے نہیں دیکھے، نہ آپ نے پہنے ہیں، تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم لوگ اماں کے ساتھ بازار گئے تھے، میرے کہنے پر اماں نے آپ کے لیے کچھ نئے کپڑے خریدے تھے اور یہ میں نے خود آپ کے لیے بنائے ہیں، لہٰذا آپ یہی پہنیں گے۔ شکر گزار سے انداز میں جب مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا تو مرسینہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا، آپ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ استعمال نہ کیجیے گا، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ آپ کے کام کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، لہٰذا جو فرض ادا کیا جائے اس کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میں اب مطبخ کی طرف جاتی ہوں، آپ کپڑے تبدیل کریں۔ اس کے ساتھ ہی مرسینہ دروازے کی طرف بڑھی، چند قدم آگے جا کر وہ اچانک مڑی، دوبارہ چوکنے کے انداز میں مجدد الدین کو مخاطب کیا، امیر، میں ایک بات تو پوچھنا ہی بھول گئی، آپ کھانے میں کوئی چیز پسند کریں تو بتا دیں، میں تیار کر دوں گی۔ مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، جو کچھ تیار ہو رہا ہے ہونے دو، میں سب کے ساتھ مل کر کھا لوں گا۔ مرسینہ باہر نکل گئی، دروازہ اس نے بند کر دیا، پھر مجدد الدین
कपड़े तब्दील करने के बाद बाहर निकला। नए तामीर होने वाले मकान में गया। वहाँ सब लोग समरून के पास बैठे हुए थे। खतलख भी लिबास तब्दील करके वहाँ पहुँच चुका था। मुजद्दिदुद्दीन आगे बढ़कर समरून के करीब होकर बैठ गया और इसे मुखातब करके कहना ही चाहता था कि इसकी माँ इसे मुखातब करके बोल पड़ी, मुजद्दिदुद्दीन मेरे बेटे, जिस रोज़ अल-रुबा का मकान बेचकर मुहतरम समरून और इनका भाई कारलूस दोनों यहाँ पहुँचे तो पहले तो इन दोनों ने यहाँ रहाइश रखने से इनकार कर दिया। फिर ये इसरार करने लगे कि हम इसकी कीमत वसूल करें, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में भला हो मरसीना का, जिसने अपने बाप और ताया दोनों को धमकी दी कि अगर आप लोगों ने इस मकान में रहाइश ना रखी तो अमीर मुजद्दिदुद्दीन नाराज़ हो जाएंगे। बस ये धमकी काम कर गई और दोनों भाइयों ने यहाँ रहाइश इख्तियार कर ली। लेकिन वक़्त की सितम शारी के कारलूस बेचारा बीमारी से सेहतमंद ना हो सका और चल बसा। बेटे, इसे मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। इसके फौत होने के 4-5 दिन बाद तुम्हारी फूफी ज़ुहरान ने मुझे मशवरा दिया था कि जब तुम और खतलख लौटो तो तुम्हारी और मरसीना, अबीरा और खतलख, शमसुद्दीन और जमारा की शादी कर दी जाए। लेकिन मैंने इससे इख्तलाफ किया, इसलिए कि कारलूस की मौत के बाद इस कदर जल्द शादियों का एहतमाम करना मुझे कोई मुनासिब ना लगता था। बेटे, इस सिलसिले में भला हो मरसीना, मिशाल, जमारा और अबीरा का कि उन्होंने भी मुझसे इत्तफाक किया। यहाँ तक कहते कहते अब्दा को खामोश होना पड़ा, इसलिए कि इसी लम्हे मरसीना, जमारा, मिशाल और अबीरा खाना के बर्तन उठाए वहाँ आईं। खाने के बर्तन उन्होंने तरतीब से लगाए। फिर सब समरून के पास बैठकर खाना खाने लगे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक रोज़ अपने कसर में अपने सालारों, अमायदीन और सल्तनत के सरकर्दा लोगों के साथ बैठा हुआ था कि इसके मुहाफ़िज़ दस्तों का सालार एक बूढ़े शख्स को अंदर लाया और इसे सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने देखा बूढ़ा बोसीदा लिबास में बड़ा परेशान हाल था। दाढ़ी बेचारे की छिदरी छिदरी हो रही थी। लिबास और अमामे पर गर्द थी जो इसके तवील सफ़र करने की गम्माज़ी करती थी। कुछ देर तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस बूढ़े का जायज़ा लेता रहा। फिर इसे मुखातब किया, जो शख्स अभी तुम्हें अंदर लेकर आया है उसने मुझे बताया है कि तुम दमिश्क के एक नवाही कस्बे से आए हो, कोई शिकायत और नालिश लेकर आए हो। कहो क्या कहना चाहते हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम्हारा ताल्लुक दमिश्क की सल्तनत से है। तुम्हें वहाँ के हुक्मरान मजीदुद्दीन के पास जाना चाहिए था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इन अल्फाज पर इस बूढ़े की आंखों में नमी उतर आई थी। कुछ देर होंठ काटता रहा, सुल्तान की तरफ देखता रहा, फिर बारूद की तरफ फट पड़ा। सुल्तान मोहतरम, मैं वाकई दमिश्क के एक नवाही कस्बे से आया हूँ। जब किसी ने मेरी शिकायत और नालिश ना सुनी तो फिर मैंने आपका रुख किया। सुल्तान, मैं तुम्हें हल्का-ए तनवीर में खून नाब तकदीर की दास्तान, तेहवर के तरानों में नावको तेग की सितम आराइयों की कहानी, अमन की शीरीं बातों में आंसुओं की नमी, आहों की दिल सफरी में उलझी हकायत, चमकते सितारों के खराम में आतशी तूफानों में फंसी कथा और सकूंज़ादों में आग के आलाओं भरी बर्बादियों की सरगुज़िश्त सुनाने आया हूँ। हाय हमारी बदकिस्मती कि दमिश्क का हुक्मरान मजीदुद्दीन फिर यरूशलेम और तराबलस और अंताकिया के हुक्मरानों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। इनके सामने
कमजोरी का इजहार कर रहा है और अब ये अफवाहें फैल रही हैं कि वो यरूशलेम के बादशाह बालडून को खराज देने पर भी तैयार हो रहा है। इसकी इस कमजोरी की वजह से सलीबी सरहदी मुसलमानों पर हमला आवर होकर इनकी बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कहने के बाद बूढ़ा रुका, फिर इंतहाई गुस्से और बरहमी में वो आतिश फिशां की तरह फड़फटा। नूरुद्दीन इन इलाकों में सलीबियों के हाथों जवां बेटियां शैतानी फंदों में फंस रही हैं, औरतें बदकारी की तारीकियों में फेंकी जा रही हैं, जवां मौत की हौलनाकियों का शिकार हैं, बूढ़ों के सरों पर राख, पाँव में बेड़ियां सजाई जाती हैं। नूरुद्दीन वहाँ शराफत नफ्स, बेवकार आज़ादी से भी बदतर होके रह गई है। वहाँ हमारी शनाख्तों पर गनौने खताब, गलीज तकल्लम की मोहरें सबत की जाती हैं। किसी को वहाँ रद्द कबूल का इख्तियार नहीं है। नूरुद्दीन, मैंने जब जुल्म की ये चक्की चलती हुई देखी तो पहले मजीदुद्दीन के पास जाने का इरादा किया, लेकिन किसी ने कहा मजीदुद्दीन उल्टा तुम्हें सजा देगा। फिर मैंने आलमे इस्लाम पर निगाह दौड़ाई तो नूरुद्दीन मेरी निगाहों का मरकज़ सिर्फ तुम बने। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आलमे इस्लाम के वो मुजाहिद कहाँ गए जो अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए लहर से बहर, राख से आग बन जाया करते थे, जो धुएं से अबर बनकर कांपती मिल्लत अपनी कौम की खातर अपने अदद अपने दुश्मन पर छा जाते थे, दुश्मनों के खिलाफ जिनकी हर सांस जलजला और जिनका नफ्स तूफान बन जाता था। नूरुद्दीन, अगर ऐसे मुजाहिद तुम हो तो फिर दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। अगर तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है तो फिर मेरी रहनुमाई करो कि मैं खज़ां रसीदा मिल्लत के लिए कहाँ शजर की छाऊं तलाश करूं, अमन व अज़मत के अबर का साया तलाश करने के लिए किस रुख पर निकलूं। मुझे किसी ऐसी हस्ती की तरफ रहनुमाई करो जो मुसलमानों की बेबसी की दास्तान सुनकर राख से भड़कता हुआ शोला बनकर उठे। और यहाँ तक कहते कहते इस बूढ़े को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसने देखा कि नूरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले थे। आंसुओं की कई लड़ियाँ इसकी दाढ़ी के बालों से ढलकती हुई इसके दामन को भगो गई थीं। इसके करीब बैठे असदुद्दीन शेरकोह और मुजद्दुद्दीन इब्न दाया की हालत भी इससे मुख्तलिफ ना थी। अजीब सी दिल सोजी में कुछ देर तक वो बूढ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ देखता रहा। फिर दुख भरे लहजे में इसकी आवाज़ कसर के इस कमरे में गूंज गई थी। सुल्तान मुहतरम, कसम मुझे अपने खुदा बंदे कदीर व मेहरबान की, आपके ये आंसू मेरे लिए इस बात की निशानदही करते हैं कि मैं अपनी शिकायत, अपनी नालिश के लिए सही जगह पर आया हूँ। सुल्तान मुहतरम, आपकी इस कैफियत ने मेरे लिए हौसलों का पहर खड़ा कर दिया है। हौसला वफ़ाए आदम है, हौसला ही इंसान के लिए यकीन मुहकम और दिलों का मरहम बनता है। सुल्तान मुहतरम, मेरी बदकिस्मती कि मैं आपको सुल्तान मुखातब करने की बजाय नूरुद्दीन मुखातब करता रहा। हाय हईफ सलीबों के हाथों में जो कदम कदम पर तारीक मुजालम के तूफान देखता रहा। नरम व नाज़ुक होंठों पर रूहों की वीरानी बरी आहें सुनता रहा, जो ममता की गर्मी को जुल्म की शोरीदा हिद्दतों में जलते देखता रहा। मैं जो सितम तले